Okay, so this is critical reasoning, and we're gonna practice. The level of difficulty is advanced practice set, which accounts to 700 plus level difficulty. Now, ideally, these kind of questions they demand a proper level of practice. पहली चीज दे मतलब इन क्वेश्चंस की डिमांड रहती है कि आपकी जो प्रैक्टिस है यू हैव टू बी हाई ऑन दैट. पहली चीज. दूसरी चीज, नो प्रीकंसीव्ड नोशन. डोंट हैव टू रियली थिंक दैट मैंने पहले वहां पे ऐसा पढ़ा था, आइडियली ये होता है, यूनिवर्सल ट्रुथ तो ये है. नो, द पैसेज दैट इज गिवन टू यू, पैसेज इज द लॉर्ड. ठीक है. एंड द थर्ड थिंग, बी फ्लेक्सिबल. Be flexible for the options given. That is the requirement when you solve critical reasoning. No biasness, nothing of any sort. Is this part clear to you? Yeah. Perfect. Let's move Yes. on. I'll be solving the first of all I'll be doing the questions. ठीक है. जो थोड़ा easy लगेगा I'll be giving those questions to you. देखते हैं. चलो. The very first question. Vodco, a lumber company, has seen 20% drop in profits due to new environmental regulation that severely restricts logging in its primary forest holding. ठीक है. प्रॉफिट में 20% का रिडक्शन हो गया. फाइन. तो अब क्यों हुआ है वो अपने के लिए उतना जरूरी नहीं है. अगर मान के चलो आता है क्वेश्चन में तब हम देख लेंगे. ड्यू टू सम XYZ रीजन. चलो लिखते हैं ड्यू टू XYZ. To compensate, Woodco plans to invest heavily in synthetic wood manufacturing. ठीक है. Investment in synthetic wood. ठीक है. चलो. Industry analysts predict the synthetic wood will be highly popular in the construction sector, but they have warned that the massive initial capital investment required will further decrease Woodco overall net profits for at least the next 3 years. Although it is going to, it's going to be very popular, but at the same time, अगर long term इसका हम देखें, long term forecast करें, तो हमको ये loss देगा. Despite this, Woodco CEO claims that the investment is an absolute necessity to avoid bankruptcy. ठीक है. इन सारी चीजों के बावजूद वो क्या कंक्लूड कर रहा है कि भैया इन्वेस्टमेंट तो देखो जरूरी है. क्यों जरूरी है? बिकॉज वी हैव टू अवॉइड बैंक्रप्सी. ये पूरा नैरेटिव क्लियर है? Yeah. चलो नेक्स्ट. लेट्स मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस. व्हाट आई डिड, अभी तक हमने क्या किया? I only read the part that was given in the question. I did not think of anything. I did not decide anything. I did not made any preconceived notion कि यार ऐसा होगा, वो ऐसी चीजें बोलेगा. No, nothing of that sort. What I did, जितना हमको यहाँ पे दिया था हमने केवल उतना पढ़ा और यहाँ पे लिख दिया. चलो क्वेश्चन देखते हैं. Which are the following if true most strongly supports the CEO's claim? Most strongly supports. And if Mahesh, tell me this one thing that most strongly supports का मतलब क्या होगा? What is the thing that we are looking primarily in this? जो स्टेटमेंट हमारे सीईओ ने जो दिया है कि वो ये इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है और बैंक अदरवाइज बैंक वी विल गो बैंकक्रप्ट. ठीक है. तो उसके फेवर में कौन सा स्टेटमेंट है? Okay, partially you are correct. Manju, rectify the flaw that Mahesh made. I didn't hear him properly, but I will give the answer. Okay, he was saying that we have to see for the argument that is helping to strengthen this. उसने ये बोला. Now, but is most strengthening. Correct. Most यहाँ पे है. That is the game plan. हो गया. 5 में से I would say 3 ऑप्शन सही है. तो गलत हूँ. बट इन 3 ऑप्शंस में से सही जो है ना केवल एक ही होगा. And that is gonna be your correct answer. अभी क्लियर है महेश क्या फ्लॉ की ये थे? हाँ. अब नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए. The environmental regulation ठीक है. If true, सब मान के चलो सबके सब ट्रू ही है. सबके सब. कोई भी ऑप्शन फॉल्स नहीं है.
The environmental regulation restricting logging is widely unpopular and is expected to be repealed within the next 5 years. तो उससे क्या एनवायरनमेंट का रेगुलेशन है कि भाई आप लॉगिंग को रिस्ट्रिक्ट कर दो एंड दैट इज वाइडली अनपॉपुलर एंड ये जो अनपॉपुलर ओपिनियन है दैट दिस इज एक्सपेक्टेड टू बी रिपील्ड विद इन द नेक्स्ट 5 years. तो भैया जब अगले 5 year के अंदर अंदर जब ये रिपील होगा व्हाट फक एम आई गोना डू फॉर द नेक्स्ट 3 years? Why the hell am I even thinking about it? I don't fucking understand this part. Why the hell are you saying this particular statement, Mr. Author? I'm not able to understand your reasoning, which is why this is a flawed argument. It's not even strengthening, buddy. Which is why eliminated. Is the part clear to you? Guys, I need a prompt response. Okay, fine. Several major competitors of Woodgo have already gone bankrupt due to their inability to adapt to the new logging regulations. So, उससे क्या? Several major competitors अगर bankrupt हो गए हैं, does that guarantee? क्या ये guarantee दे रहा है कि मैं bankrupt नहीं होऊंगा? नहीं, ऐसा कोई Is there any guarantee of this? नहीं, इससे कोई इन्फ्लुएंस ऐसा नहीं आ रहा. Again, no inference, hence a flawed option, eliminated. Next, without the immediate commencement of the new investment, Woodco's diminished logging operations will generate insufficient cash flow to service its existing short-term debt within a year. Perfect. Balanced debt, we'll come back to it. We'll see and we'll be coming back to it. Hold करना है. I'm not marking, I'm not declining. कुछ नहीं. No. The projected long-term profit margin on synthetic wood products is significantly higher than the historical profit margin on natural lumber. Now, what exactly are we trying to do with this? कि भाई देखो हमारा जो projected long-term profit margin है synthetic wood में, मान के चलो हमको पहले प्रॉफिट हो रहा था 100 रुपए का, projected long-term है हमारा synthetic wood का, that is हमारा 1000. This is the projected part, ठीक है, and that is technically significantly higher than the historical profit margin on natural lumber. तो उससे क्या हमारा क्लेम क्या है? इन्वेस्टमेंट तो देख भाई करना पड़ेगा वरना मैं हो जाऊंगा बैंकक्रप्ट. इससे क्या निकल के आ रहा है? आपके इन्वेस्टमेंट कहाँ पे है? यहाँ पे आप प्रोजेक्टेड लॉन्ग टर्म प्रॉफिट मार्जिन की बात करो. व्हाट इज दिस प्रोजेक्टेड? कितना लॉन्ग टर्म? कितना? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 3 साल? व्हाट्स द क्रेडिबिलिटी ऑफ इट? कोर्ट ऑफ लॉ किस चीज को देखता है? कोर्ट ऑफ लॉ ऑलवेज गोज विद द एविडेंस प्रोवाइडेड. वेयर इज द एविडेंस इन दिस? महेश, मंजू, एविडेंस कहाँ पे है यहाँ पे? डू यू सी द एविडेंस? No. If you cannot see the evidence, what are we going to do? अभी तो इसको एलिमिनेट कर देंगे. Eliminate. Perfect. Fifth option. Woodco is able to secure the necessary capital for the synthetic wood plant at a relatively low interest rate through government green energy subsidies. Now tell me, right, wrong, balance. क्या करें इसको? Wrong. रॉन्ग है क्योंकि इससे मेरा इन्वेस्टमेंट का कहानी मतलब जो हम चाह रहे थे वो तो इसमें कुछ मेंशन ही नहीं है. ठीक है, मंजू ने बोला रॉन्ग, महेश ने बोला रॉन्ग. क्यों रॉन्ग? महेश का रीजन आ गया. मंजू तुम्हारा रीजन? किसी we have to support. There is need of investment. करेक्ट. तो यहाँ पे क्या चीज मिसिंग है? इसमें मिसिंग क्या है? इन्वेस्टमेंट इज मिसिंग. क्यों अपन इन्वेस्टमेंट में तो फोकस दे क्यों रहे हैं? बिकॉज द मेन क्लेम जो हमारा क्वेश्चन का जो स्टेम है ना, दैट स्टेम इज डिमांडिंग कि यार इन्वेस्टमेंट होना चाहिए. एंड इफ द इन्वेस्टमेंट इज नॉट देयर, technically that particular argument is going to be a flawed option for me when I'm deciding anything, right? Which is why again, despite being a bit balanced, this is the incorrect answer choice. अब देखो पहली चीज आती है दिमाग में कि सर प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन तो हमने कर लिया, आइडियली उससे देखा जाए तो सी हमारा आंसर होना चाहिए. व्हाट इफ प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन डजंट वर्क इन द एग्जाम? अगर एलिमिनेशन टेक्निक आपकी काम नहीं आई तब अपन जाते हैं लॉजिक के पास. लॉजिक क्या है? लेट्स सी दैट. विदाउट द इमीडिएट कमेंसमेंट ऑफ द न्यू इन्वेस्टमेंट, जब तक नया इन्वेस्टमेंट कमेंस नहीं होता है, Woodco's diminished logging operations will generate insufficient cash flow to service its existing short-term debt within a year. मतलब महेश, मंजू, मान के चलो महेश, दोनों माइक ऑन करो अपना जल्दी. Yeah.
ठीक है। महेश को हम यहाँ पे दे रहे हैं रोल वुडको का, ठीक है, या फिर महेश को हम दे रहे हैं रोल यहाँ पे वुडको के सीईओ का, ही इज द सीईओ। और ये जो मंजू है ये है हमारा गवर्नमेंट, ठीक है। महेश बोलता है कि यार देखो हमें चाहिए है इन्वेस्टमेंट ताकि हम बैंकरप्सी से बच जाएं, ठीक है। गवर्नमेंट ने महेश की बात सुनी, गवर्नमेंट इस चीज को एनालाइज कर रही है। मंजू क्या किस ग्राउंड पे इसको एनालाइज करोगे, हमें थोड़ा बताओ वो चीज। महेश बोल रहा है कि हमको बैंकरप्सी से अवॉइड करने के लिए इन्वेस्टमेंट इज नीडेड। That is what you are saying, what I have just said. I am asking the background reasoning of it. I'm just recalling my question. Okay. Mahesh has just said that I have needed investment to avoid bankruptcy. Perfect. Then my role is government, so I have to analyze this. ठीक है। His argument. So उसका मैं अभी रेगुलेशन डाला है कि इन द लॉगिंग। लॉगिंग, ठीक है, लॉगिंग वापस क्या हो सकता है? चलो ठीक है, हम बताते हैं, कोई दिक्कत नहीं, I'll tell, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, ओवरऑल अपन को स्ट्रेंथन करना था यहाँ पे, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथन इस ग्राउंड पे कर रहा है कि यार देख अगर इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो ये अपना शॉर्ट टर्म डेट भी नहीं दे पाएगा। तो अगर कोई कंपनी अपना शॉर्ट टर्म डेट जो है, अगर वो कंपनी अपना शॉर्ट टर्म डेट नहीं दे पा रही है, कैन बी से वो बहुत ही जल्दी बैंकरप्ट हो जाएगी। जब वो आने वाले 1-2 साल में अपने लोन्स नहीं पे ऑफ कर पाएगी तो तीसरे साल में वो क्या प्रॉफिट जनरेट करेगी? Which is this particular option is satisfying all the needs. Hence, this is the most correct answer choice for this question. तो क्या अच्छे से क्लियर है कि नहीं, ये बताओ। ये कैसे इट इज क्लियर, बट ऑप्शन बी तो पॉसिबल है ना। ऑप्शन बी सेकंड वाला, हाँ ओके लेट्स सी, एक बार और देख लेते हैं। चलिए, सेवरल मेजर कॉम्पिटिटर्स ऑफ वुडको हैव ऑलरेडी गॉन बैकवर्ड, ठीक है, मान के चलो मार्केट में 150, ठीक है, जिसमें से 70 उसके कॉम्पिटिटर, 70 में से 50 लोग जो हैं वो बैंकरप्ट हो चुके हैं। इतना क्लियर है? या ठीक है ना। तो वो बैंकरप्ट क्यों हुए? दे वर अनेबल टू अडैप्ट टू न्यू लॉगिंग रेगुलेशंस। कहाँ इन्वेस्टमेंट इसमें? yeah, it is also true, but it is indirectly saying that investment is needed. डायरेक्टली बोल रहे हैं ना। अब हमको ये बताओ, अपन की क्वेश्चन की जो नीड है वो क्या है? इज इट लाइक, नहीं क्वेश्चन की नीड, आई एम सेइंग नॉट कंक्लूजन, आई एम नॉट सेइंग अबाउट कंक्लूजन, आई एम सेइंग अबाउट ये। डिस्पाइट आप बी बोल सकते हो, आप बीच कर दो जस्टिफाई, कोई दिक्कत नहीं, बट यू विल नॉट बी एबल टू जस्टिफाई अंडर द ग्राउंड ऑफ मोस्ट वाला कंसेप्ट। अभी क्लियर है? या परफेक्ट। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। रोहन स्विच ऑन योर माइक। Okay, the very first thing that I need is that just in case you are joining the class and just in case you are coming in the class, ठीक है, I want you to abide by 3 things, ठीक है। I don't want you to say me sir or something like that. Either you say me KC or you say me PD. That is priority number 1. Priority number 2, ठीक है, एक थोड़ा पता है साइलेंट एनवायरनमेंट में बैठना क्लास लोगे जब तो, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 इज कि वीकली टारगेट्स देखो होते हैं क्लास में, ठीक है। वीकली टारगेट्स हम पर्सनली बना के देते हैं डिपेंडिंग ऑन द लेवल उस बच्चे का क्या है, ठीक है। आपको पूछना है, इन दोनों से पूछ लो, ये लोग आते रहते हैं क्लास, इन लोग को वीकली टारगेट हम दे रहे हैं। व्हाट आई नीड फ्रॉम यू इज यू एटलीस्ट कंप्लीट 80% ऑफ दीज टारगेट्स। हम ये भी नहीं बोल रहे, अगर हम बोल रहे हैं 10 क्वेश्चन करने हैं 7 दिन में, मतलब 70 क्वेश्चन, आई एम नॉट इवन सेइंग कि पूरे 70 को 50 to 60 भी करके ले आओगे, आई एम ओके विद इट, ठीक है। मतलब जो चीज क्लास में बोली जा रही है वो करके देनी है। द फोर्थ थिंग इज व्हेनेवर आई एम सेइंग स्विच ऑन द माइक, ऑन द स्पॉट माइक स्विच ऑन होना चाहिए, सो दैट आई कैन क्लैरिफाई द डाउट कि आपका भैया क्या डाउट है या आपको किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है। मतलब आई नीड प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। ये चीजें क्लियर है कि नहीं? एंड द लास्ट थिंग इज पर डे आई नीड कि आप 3 से 4 घंटा
फॉर एंटायर VARC ट्रिप 2 मई मंथ में, फॉर द मंथ ऑफ मे। 3 से 4 घंटा महीने का इस मई मंथ में 3 से 4 घंटा आप दे रहे हो, मतलब इफेक्टिवली आप से 12 तारीख आ जाए, है ना, क्लोज टू यू आर लेफ्ट विथ 18 डेज, 18 into I would say 4, 72 hours, 72 hours बहुत होता है, ठीक है। अगर ये चीजें आप कर सकते हो अचीव, एंड इफ यू कैन गिव योर 70%, हम 200% देने को रेडी हैं। इफ यू कैन गिव योर 70%, only and only then I would say you are free to join the class, else there are lot many people जो पढ़ा रहे हैं, either I'm not, मतलब हम डांट नहीं रहे हैं, हम बहुत नॉर्मल चीज बता रहे हैं, इट इज वेरी मच ऑथेंटिक। आपको लगे तो आप इन लोग से पूछ लो, रिव्यू ले लो, हम पर्सनली कॉल कर करके बोलते हैं, है ना मंजू, महेश? या किस हाँ सही। So just the thing is, I want that 70% from your side यार। बाकी क्लासेस की रिकॉर्डिंग डल जाएगी, आपको प्रैक्टिस ड्रिल मिल जाएगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे, टेस्ट हो जाएगा, लाइव टेस्ट हम क्लास में ही कराते हैं, वे कराएंगे आज की क्लास में, देख लेना कैसे होता है। If you are okay with all these things, you are very much welcome to join the classes. If you are not okay with all these things, तो कोई बात नहीं, there are many people in the market, है ना। बाकी I would say यहाँ आओगे तो प्रॉफिट तो होगा यार, ठीक है। चलो देखते हैं आगे क्वेश्चन। रोहन, आई एज्यूम ये चीजें क्लियर है आपको? यस ओके परफेक्ट, लेट्स मूव अहेड देन। Question number 2. In recent years, several coastal towns have implemented strict zoning laws prohibiting the construction of high-rise condominiums within a mile of the beach. Okay, fine. यहाँ पे कुछ लॉज आए हैं, ठीक है, लॉज आ रहे हैं, किस चीज के लिए लॉज हैं? दैट यू कैन नॉट डू एनी सॉर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, कहाँ पे नहीं कर सकते? नियर द बीच, बीच के आसपास यू कैन नॉट डू कंस्ट्रक्शंस, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कैसा है, घर बनाना, क्या बनाना, आई एम नॉट फकिंग अवेयर अबाउट दैट, नाइदर डू आई वांट टू थिंक, ठीक है। नेक्स्ट, these laws were championed by environmentalists to protect the fragile ecological integrity of the shoreline. However, okay, now tell me कि however का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? Fast. यहाँ पे वो बेसिकली आप क्या कहते हैं उसको, अपना न्यू आइडिया और वो जो इम्पोर्टेंट चीज है वो मेंशन करने वाला है। न्यू आइडिया, ठीक है। मतलब ये कि भैया however के बाद वाला जो पार्ट है ना, that is of infinity importance। उसके पहले वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसके बाद वाला बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कैसे, देखते हैं। However, local real estate association argues that the laws will ultimately devastate the local economy by driving wealthy vacationer away to other less regulated destinations. Local real estate एक association है, उसका कहना है यार देखो, आप ये चीज अगर कर दोगे ना तो हमारी जो लोकल इकोनॉमी है, ठीक है, वो है, वो क्या होगी, तबाह हो जाएगी। उसका रिजल्ट भी बता रहे हैं। ऐसे में लोग क्या करेंगे, दे विल गेट ऑप्शंस टू माइग्रेट टू सम अदर प्लेस। अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या होगा, प्रॉफिट जो है वो ऊपर नीचे हो सकता है। क्वेश्चन में लिखा नहीं है ऐसा, ये इस आर्ग्यूमेंट, ये एंटायरली नैरेटिव के बेसिस पे आई एम ट्राइंग टू कम इनटू अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग। इतना पार्ट क्लियर है कि नहीं? या ओके। और किसी ऊपर का आपने कैसे कंक्लूड किया? नीचे तो मुझे समझ में आ रहा है क्योंकि वो डिवास्टेटेड वर्ड भी यूज किया है, लेकिन ऊपर, ऊपर कहाँ पे? ये वाला नहीं, प्रॉफिट आपने लिखा ना कि ऊपर नीचे हो सकता है। नीचे तो मैं समझ गया हो सकता है, लेकिन ऊपर आपने कैसे कंक्लूड, मतलब इन्फ्रेंस निकाला कि ऊपर भी जा सकता है? क्या पता वहां के कोई कोस्टल टाउन के जो ये लोग लॉ वगैरह प्रोहिबिट कर रहे हैं, उनका कुछ ऐसा रीजनिंग हो कि यार हम यहाँ पे कुछ नया प्लान लेके आएंगे, हो सकता है। दे कैन डू दैट, यू डोंट नो। What did I say? The very first thing, when you are solving critical reasoning, you have to stay flexible.
ठीक है, नीचे तो होगा, वो गारंटीड है, बट वी कैन नॉट मिस आउट द अपॉर्चुनिटी ऑफ मैक्सिमाइजिंग द प्रॉफिट। ओपन माइंडेड। ये पार्ट क्लियर है? ठीक। पक्का? हम्म। ओके, लेट्स गो टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इफ ट्रू, कंसीडर कि सारे के सारे ऑप्शंस आपके ट्रू हैं, मान लो, सपने में बस मान लो। मोस्ट सीरियसली वी कैन, महेश जस्टिफाई दिस, क्या मतलब हुआ इसका? जो ऊपर स्टेटमेंट उन्होंने दी है कि अगर जो लॉ लोकल रियल एस्टेट का स्टेटमेंट है कि हमारा जो ठीक है, डिवास्टेटेड हो जाएगा इस हाँ। लॉस आने से, ओके, ऐसा होगा ही नहीं। ऐसा कोई स्टेटमेंट हो जो ये बता दे कि बिल्कुल नहीं होगा, जो हाँ, बेस्ट। ओके फाइन। व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम योर लास्ट मिस्टेक? मैंने पहले बोला था कि कोई भी मतलब जहाँ से उसका इन्फ्रेंस ये था कि अगर 3 ऑप्शन है तो तीनों हो सकते हैं, लेकिन इस बार था कि मुझे उसमें से तीनों में से जो बेस्ट होगा वही करेक्ट। क्यों होगा? बिकॉज मोस्ट देखो होगा यार, ठीक है, 5 ऑप्शन में से अगेन 3 सही होंगे उनमें से, लेकिन एक ही होगा जो एकदम आंसर करेगा हमारे क्वेश्चन को, ठीक है। सो अगेन वी हैव टू बी स्टे फ्लेक्सिबल व्हाइल वी आर सॉल्विंग क्रिटिकल रीजनिंग। वी वोंट बी गोइंग बैक टू द पैसेज, अपन डायरेक्टली ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। Vacationers who prefer high-rise condominiums generally spend significantly more money at local business than do vacationers, मतलब यहाँ पे कंपैरिजन चल, ये आपका अलग स्टेटमेंट है, ये आपका अलग स्टेटमेंट है। मतलब बोल रहा है कि भाई हाई राइज कॉन्डोमिनियम्स जैसे, ठीक है, हाई राइज के जो क्या है कॉन्डोमिनियम्स, इतना मेरे दिमाग में पता है ऊट पटांग आ रहा है कि पढ़ने बाद आई जस्ट से दिस एक्स, इसको एक्स बोलेंगे, ठीक है, से दिस एक्स है ये। Vacationers who prefer high rise X generally spend significantly more money at local business, ठीक है, versus vacationers who prefer smaller beachfront cottages or bed and breakfast। तो उससे क्या वीकन कैसे हो रहा है? रियल एस्टेट एसोसिएशन का आर्गुमेंट क्या था? that they might get options to migrate। लोकल इकोनॉमी हमारी डिवास्टेटेड हो जाएगी, डिमोलिश हो जाएगी। अच्छा, अब आप बोलोगे सर प्रॉफिट बढ़ तो सकता है, यहाँ पे घट भी सकता है, बट उसके आगे हमने ये भी लिखा है दैट यू हैव टू स्टे फ्लेक्सिबल, सो यू वोंट बी डिसाइडिंग एंटायर थिंग ओनली ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉफिट्स, बट यू विल आल्सो बी लुकिंग आउट फॉर वेरियस एवेन्यूज अवेलेबल। ये पार्ट क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, जस्टिफाई करते हैं इसको। वेकेशनर्स हैं जो प्रेफर करते हैं कि भाई हमारे हाई राइज बिल्डिंग जो है ना, वहां पे हम ज्यादा पैसा, मतलब हमारे लोकल बिजनेस वहां पे ज्यादा पैसा लगाते हैं, जिसके कारण जो लोग वेकेशन में आते हैं वहां वो लोग ज्यादा किराया भी देते हैं रहने का, ठीक है। वर्सेस कुछ वेकेशनर्स ऐसे रहते हैं जिनको अच्छा लगता है कि यार हम बीच के सामने जो छोटे छोटे कॉटेजेस रहते हैं वहां पे रहे। तो ये तो प्लस भी बोल रहा है, माइनस भी बोल रहा है। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, हेंस आई एम होल्डिंग इट अप, ठीक है। समझ नहीं आ रहा है, वीकन करना चाह रहा है, स्ट्रेंथन करना चाह रहा है। फॉर अ मोमेंट आई एम होल्डिंग। सेकंड, द विजिबल इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन ऑफ द shoreline has become the primary draw for a new demographic of ecotourists who on average spend significantly more locally than the traditional high-rise vacationers। So what? भाई आपके जो विजिबल इकोलॉजिकल प्रिजर्वेशन है शोर लाइन पे, ठीक है, मतलब आपने कुछ ऐसे ट्री हाउस वगैरह बनाए होंगे उस शोर लाइन में, दे आर बिकमिंग द प्राइमरी ड्रॉ फॉर न्यू डेमोग्राफिक ऑफ इको टूरिस्ट who on an average spend significantly more locally than traditional high rise vacations। मतलब ये ऐसा बोल रहे हैं कि भाई ट्री हाउस पे ज्यादा पैसा जा रहा है, लोग ट्री हाउस ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं और होटल्स कम प्रेफर कर रहे हैं, ये चीज बोल रहे हैं। सो डज इट मीन कि उनको ऑप्शन नहीं मिलेगा माइग्रेट करने का? क्या पता भाई ये होटल वाले माइग्रेट करके कहीं और चले जाएं, वीकन तो नहीं किया ये। वीकन किस चीज को करना था? वीकन हमें किस चीज को करना था कि भाई ऑप्शंस टू माइग्रेट होंगे ही नहीं उनके पास, उनको अवेलेबल नहीं होगा माइग्रेट करने का ऑप्शन,
देयर विल बी नथिंग ऑफ एनी सॉर्ट कि अब वो माइग्रेट कर पाए। क्यों? क्योंकि उनके जितने भी इंटरेस्ट हैं वो उसी पर्टिकुलर जगह पे सेटिस्फाई हो गए। दैट इज व्हाट वी विल बी लुकिंग फॉर अ वीक इन एनवायरनमेंट, बट यहाँ तो वो हो नहीं रहा है, विच इज वाई एलिमिनेटेड। सी देखते हैं, प्रॉपर्टी वैल्यूज फॉर एग्जिस्टिंग रेसिडेंशियल होम लोकेटेड नियर द बीच हैव स्काई रॉकेटेड। ओके, प्रॉपर्टी की वैल्यूज जो एग्जिस्टिंग है they have skyrocketed since the zoning laws were implemented due to restricted supply। क्यों हुए? क्योंकि जोनिंग लॉज इंप्लीमेंट हुए जरूर थे, लेकिन वो एक पॉइंट के लिए कि भाई सप्लाई हमारी रिस्ट्रिक्टेड थी। तो आइडियली अब पता है क्या हो रहा है यहाँ पे, आपके पास जो ऑप्शन मिल रहा था आपको कि आप माइग्रेट कर जाओगे, आपकी प्राइसेस यहाँ पे स्काई रॉकेट हो चुके हैं। जो चीज आप पहले 100 रुपए 1000 रुपए में दे रहे थे, अब आप वही चीज 3000 रुपए में दे रहे हो, और लोग ले भी रहे हैं। क्यों ले रहे हैं? आई डोंट नो, आई एम नॉट कंसर्न अबाउट दैट। ऑप्शन बोल रहा है, ऑप्शन ने ये चीज बोली है। होल्ड करते, आई एम नॉट मार्किंग बिकॉज हमारे पास एक ये भी है, एक ये भी है। क्रिटिकल रीजनिंग रूल नंबर 1 हमेशा फ्लेक्सिबल है। Several neighboring coastal laws that deliberately rejected similar zoning laws have subsequently seen a massive surge in high-rise condominium construction. Neighboring coastal towns. Massive surge. This does not guarantee कि भाई वो चीज मेरे साथ भी होगी। जस्ट बिकॉज आपके दोस्त का सिलेक्शन ISB हैदराबाद में हो चुका है, जस्ट बिकॉज आपके दोस्त का सिलेक्शन IIM अहमदाबाद में हो गया है, दिस डज नॉट गारंटी कि आपका भी सिलेक्शन IIMA में होगा। उसकी जर्नी अलग है, आपकी जर्नी अलग है, which is why eliminated. The construction of large high-rise condominiums typically creates a significant number of high-paying, albeit temporary, jobs in the local construction industry. ठीक है, ये क्रिएट कर रही है एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ हाई पेइंग जॉब्स, ठीक है, लोकल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में। बट ये कंस्ट्रक्शन कब होगा? कंस्ट्रक्शन कब होगा? जब आपके पास पैसा आएगा। पैसा कब आएगा? जब वेकेशनर्स आपके यहाँ रुकेंगे। वेकेशनर्स आपके पास रुक रहे हैं, बट रुक रहे हैं नहीं रुक रहे हैं, आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट। आई डोंट हैव एनी क्रेडिबिलिटी ऑफ दैट। प्लस हमारा, हाँ बताइए। यहाँ पे मेरा जो पॉइंट था कि हमारा तो दो ऑप्शन, मतलब 2 पॉइंट था हमारे पास बेसिकली। अगर वीकेंड करना है या स्ट्रेंथन करना है तो यहाँ पे 2 ही पॉइंट हमारा था। एक तो ऑप्शन टू माइग्रेट नहीं देना था, ठीक है, और उसके बाद अगर सेकंड पॉइंट था कि भाई उसके बाद अगर प्रॉफिट की बात करता है तो ठीक है, ठीक है, दोनों चीज को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन यहाँ पे ई में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो मैं इसको ऐसे ही एलिमिनेट कर देता हूँ। बिल्कुल कर सकते हो, बट ऐसे ही हमेशा काम नहीं आता, विच इज व्हाई आई एम गोइंग इनटू द डेप्थ। क्या है, एग्जाम के पॉइंट पे ना, जब अब एग्जाम प्रेशर रहता है, सामने क्वेश्चंस चलते रहता है, टाइमर ऊपर टिक टिक चलता रहता है, उस टाइम ऐसे ही वाली चीजें बहुत कम आती हैं दिमाग में, which is why I'm going into that. I'm not denying that you cannot do this. Just I'm saying that we can try a new, thinking approach for the same. ठीक है, ठीक है, ठीक। ओके। प्लस दूसरा देखो, एक और एलिमिनेशन का ये है कि भाई कंस्ट्रक्शन होने में ऐसा तो नहीं है कि आपने आज कंस्ट्रक्शन चालू किया Day 1 में, कंस्ट्रक्शन पूरा हो गया Day 2 में, एंड दैट टू हाई राइज बिल्डिंग्स का। अगर Day 1 में चालू किया तो वो Year 3 में खत्म होगा, तो 3 साल आप क्या करोगे वहां पे? Which is why weak and eliminated. अब देखते हैं अपना जो बैटल है ना यहाँ पे, इट इज A वर्सेस C। आई टोल्ड यू, मोस्ट आता है मतलब बैटल तो होगा। ऑप्शन ए देखते हैं, जो लोग हाई राइज प्रेफर करते हैं वो ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, और जो सामने के कॉटेज में रहते हैं वो लोग कम में सेटल हो जाते हैं। तो हाई राइज प्रेफर करेंगे नहीं करेंगे, कितने लोग करेंगे? मान के चलो 1000 का फुटफॉल है वहां पे, ठीक है। अब इन 1000 में से कितने हमारे वहां प्रेफर कर रहे हैं हाई राइज में रहना, ठीक है, कितने प्रेफर कर रहे हैं बीच फ्रंट में रहना? वी आर नॉट अवेयर अबाउट दैट, ठीक है। फिर भी चलो देखते हैं, सी देखते हैं। एग्जिस्टिंग होम्स जो है वहां पे बीच के पास, उनके प्राइस अचानक से बहुत ऊपर हो गए हैं। क्यों हो गए? क्योंकि भाई जो जोनिंग लॉस थे, रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई एक पॉइंट तक थी, जिसके कारण उन्होंने जोनिंग लॉस इंप्लीमेंट किए थे। अब आप पूछोगे सर रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई एक पॉइंट तक थी, कैसे पता चला आपको? तो प्लीज अंडरस्टैंड,
सप्लाई कैन नेवर बी, सप्लाई का एक रूल होता है दैट सप्लाई कैन नेवर फॉर एवर स्टे इन अ सिंगल लाइन। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। सप्लाई जो है वो हमेशा एक सिंगल लाइन पर नहीं चल सकती है, बट दैट इज एक्सटर्नल नॉलेज। इसके हिसाब से देखें, स्काई रॉकेट हो गए प्राइस, तो भाई जो लोग यहाँ पे अब अपना घर वगैरह बना रहे थे वो माइग्रेट करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि उनका सारा आर्ग्यूमेंट जो है वो यहाँ पे इनको मिल जा रहा है, उनको सारे प्रॉफिट्स यहीं पे मिल जा रहे हैं। देन व्हाई वुड दे माइग्रेट एनीवेयर जब उनके सारे प्रॉफिट्स यहीं पे सेटिस्फाई हो रहे हैं। नाउ ऑल्दो ए इज द करेक्ट आंसर चॉइस, but A is not answering the question, which is why C becomes the most correct answer choice for this particular option. The question. अब ये नहीं कह रहे ये गलत है, ये सही है, but not answering the question, which is why eliminated. ये पार्ट क्लियर है अच्छे से? Clear but not satisfied most. क्या? I'm not satisfied with C most. ओके, क्यों सेटिस्फाई नहीं हो, रीजन बताओ उसका। Because माइग्रेट तो होगा, हो सकता है ऐसा, तो बस we can't assume it होगा। मतलब आप नहीं, क्लियर नहीं समझ आया आपको, क्या बोल रहे? We can't sure that migrates होगा नहीं होगा। वीगन करना है ना अपन। Yeah, migrates the local real वो आर्गुमेंट, उसका आर्गुमेंट क्या था कि माइग्रेट होने के लिए ऑप्शंस हो सकता है हाँ ठीक है, ड्यू टू द रेगुलेशंस, बिल्कुल। बट वी हैव टू वीकन इट। बट ऑप्शन सी से वी कांट अश्योर दैट माइग्रेट नहीं होगा। नहीं होगा मतलब माइक देखो वहाँ पे किसी कैन आई स्पीक। या प्लीज। हाँ, आर्गुमेंट ये ऐसे देखा जाए ना कि मान लीजिए कि आपके पास 10 ही सामान था, ठीक है। अब 10 सामान में से ही आपको सामान मतलब वो आपको पिक करना है, तो सप्लाई तो रेस्ट्रिक्टेड हो गई ना, और आपको पिक करना है, तो अब पैसा कुछ भी रहे, 100 रुपए से 2000 हो जाए, 10,000 हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको वही सामान खरीदना है। तो मैं माइग्रेट नहीं कर रहा। आई गेस मंजू यू आर कंफ्यूज्ड। मतलब आपका ना देखो दो चीजें चल रही हैं दिमाग, आप वीगन भी कर रहे हो और उसको ऊपर से रिलेट भी कर रहे हो। एक या बार और सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, फिर भी अगर डाउट आता है कॉल मी किसी भी टाइम, 2 बजे, 3 बजे, 12 बजे रात को, किसी भी टाइम जब भी कॉल लगाना हो लगाओ फोन। आई विल बी देयर टू सॉल्व योर डाउट, ठीक है। या चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखते हैं, एक काम करो इसको आप लोग करो, थोड़ा सा इजी है, बोल्ड फेस क्वेश्चन क्योंकि। ठीक है, आई एम सेटिंग द टाइमर ऑफ, चलो आई विल गिव 3 मिनट्स, अभी चालू नहीं करना, वेट। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 3 मिनट के पहले हम बताएंगे टाइमर कब खत्म होगा, उसके पहले आई डोंट वांट एनीथिंग, चुपचाप सॉल्व करो बस।
Okay, guys, time's up. Give me the answer. There are Option three E. people. Mahesh है, Jub है, and Rohan. Come on, give me the answer. Option E. Option E. मंजू का option E. Okay. और कोई? महेश. Mahesh, are you there? हाँ, एक मिनट। Cost is widely 3 मिनट अभी दिखे थे, क्या किए थे फिर? छोड़ो, टाइम्स अप. महेश का कोई आंसर नहीं है. रोहन. So I'm confused between B and C. Okay, आपका है A वर्सेस C. B and C. B सेकंड. Yes, yes. B वर्सेस C, ठीक है. ठीक है, देखते हैं. महेश, आई एम गिविंग लास्ट 1 मिनट, जल्दी बताओ. C. 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 ओके, सही किया. C लिया मैंने. ठीक है, चलो देखते हैं. Let's see. The widespread adoption of autonomous vehicles is heavily touted by urban planners as a definite solution to city traffic congestion. Okay, ठीक है. ये जो widespread adoption चल रहा है, so okay, हाँ, widespread adoption of autonomous vehicles. This is heavily touted by urban planners. ठीक है, ये अर्बन प्लानर्स में बहुत ज्यादा prevalent रहता है. ठीक है, चलो ठीक है. And why is it prevalent? Because they think that this is a sort of a definitive solution to city traffic congestion. ठीक है, चलो देखते हैं. Proponents, अच्छा देखो एक चीज. Whenever you see in the passage कि कोई statement अगर bold faced आ रहा है, प्लीज अंडरस्टैंड कि could be the case कि वो कहीं ना कहीं importance का होगा. ठीक है, या तो इंपॉर्टेंस का होगा या फिर इट माइट बी दैट आपका जो पूरा आर्ग्यूमेंट है उसी के इर्द गिर्द सर्क्यूलेट करेगा. ठीक है, आई एम राइटिंग एज बी ए बोल्ड फेस्ड. Proponents argue that AVs, by communicating directly with one another, can safely maintain closer following distances, eliminate phantom. Proponents argue that AVs, by communicating directly with one another, can safely maintain closer following distances, eliminate phantom traffic jams, and optimize routing in real time. ठीक है, मतलब इसको कैसे टाइम यहाँ लिख देते हैं. सी रोहन का था, ये मंजू का था, ये महेश का था. इसके वो लोग कुछ बता रहे हैं भाई, उसके कुछ प्लस पॉइंट्स रहते हैं. Some plus points are there. ठीक है. However, this optimistic view entirely ignores the psychological phenomena of induced demand. Okay, there is a thing called induced demand, and that is the psychological phenomena. That is what the author is saying to us. Author का understanding या argument ये है. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. चलो. However, change of tone, change of ideas, मतलब भाई however के बाद वाला पार्ट जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. पहले वाला इंपॉर्टेंट होगा, बट इसकी इंपॉर्टेंस 50 है, इसकी इंपॉर्टेंस 150 है. इतना क्लियर है? Yeah. ओके, चलो.
However, is optimistic view entirely ignores the psychological view. ठीक है. If daily travel becomes significantly easier, cheaper, and less stressful due to AVs, a substantial number of individuals will inevitably choose to live further from city centers, leading to drastically longer average commutes. Therefore, it is highly likely that the overall volume of vehicular miles traveled will increase, ultimately exacerbating urban congestion rather than elevating it. अच्छा, ठीक है. Psychological phenomena है, ठीक है. इसका क्या होगा रिजल्ट? अपन रिजल्ट पर फोकस करते हैं कि भाई ये तो हो गया, आपने कह दिया, बट व्हाट विल हैपन इफ वी आर डूइंग दिस? अगर आपकी सारी चीजें इजी हो जाएंगी, ठीक है, हम डिमांड एंड सप्लाई का अगर देखें, और मतलब किसी चीज की अगर बहुत ज्यादा डिमांड हो जाती है मार्केट में, तो उसकी वैल्यू जो है वो खत्म हो जाती है. मतलब आइडली आई वुड से बहुत नॉर्मल सा आर्ग्यूमेंट है, ठीक है. शादी पार्टी में आप लोग जाओगे, ठीक है, व्हेन यू विल सी सॉल्ट केप्ट ओवर समवेयर, जब आप देखोगे कि सॉल्ट कहीं पर रखा है, आप पता है क्या करोगे? कुछ लोग करते हैं इसमें, एक टी स्पून लेना है तो वो लोग एक टेबल स्पून ले लेते हैं. मतलब इसमें आएगा आपका 2 ग्राम, इसमें आएगा आपका 7 ग्राम, और फिर उसमें से ये लोग बस 1 ग्राम यूज करेंगे, और इसमें से भी 1 ग्राम यूज किए, बाकी 6 ग्राम वेस्ट कर देते हैं. ये चीज रेडिली अवेलेबल है सॉल्ट, विच इज व्हाई दे डोंट हैव द वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. ठीक है, इनको वैल्यू नहीं पता है उस चीज की. जब ये चीज नहीं रहेगी तब इनको वैल्यू समझ में आएगा. इतना क्लियर है? Yeah. Okay, guys, just give me a minute and I'm just getting this call. एक please. Hello. Deep, check your WhatsApp. WhatsApp. Okay, sorry for that. तो उसी आर्ग्यूमेंट को अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा एलैबोरेट करें, if everything is being given to you in a very readily manner, what will happen? A substantial number of individuals, they will obviously choose to live further from city centers. अच्छा, उसका इफेक्ट क्या हुआ? कि भाई लॉन्गर एवरेज कम्यूट हो जाएगा, which is why it is highly likely that the overall volume of vehicular miles traveled will increase. ठीक है, आपके जो vehicular miles हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे. ठीक है, चलो पॉइंट नंबर 1. ठीक है, एंड रिजल्टेंट फैक्टर ऑफ दिस वुड बी दैट आपका जो अर्बन कंजेशन है, ठीक है, जो ट्रैफिक है आपका, वो घटने की जगह उल्टा एक तरीके से बढ़ जाएगा. इज दिस पार्ट क्लियर टू यू? हाँ, yes. Okay. Let's go towards the question. In the argument given, the two bold-faced portions play which of the following roles? So basically, याद है क्लासेस के शुरू में जब क्लास आपका एक कोर्स चालू हुआ था, हम हर बैच में ये चीज बोले थे कि भैया एक चीज का बहुत ध्यान रखना, एंड दैट इज फंक्शन. डू यू रिमेम्बर इट और नॉट? Yeah. So there was a reason I told that. उसका रीजन यही था कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर सेंटेंस का फंक्शन बताना होता है. सो टेक्निकली यहाँ पे आपको इन दोनों बोल्ड फेस का फंक्शन बताना है कि आखिर ये क्यों एग्जिस्ट करते हैं. देखते हैं, चलो. द फर्स्ट इज वाइडली हेल्ड बिलीव दैट द आर्गुमेंट सेट्स आउट टू डिफेंड. द सेकंड इज द मेन कंक्लूजन ऑफ द आर्गुमेंट. ओके, फाइन, बैलेंस्ड लग रहा है. ठीक है, बट पहला है कि इट वाइडली हेल्ड बिलीफ. एक बिलीफ है, आई एम नॉट कन्विंस्ड विद दैट रीजन. ठीक है, कोई बात नहीं, होल्ड करते हैं. द सेकंड इज मेन कंक्लूजन ऑफ द आर्गुमेंट.
इट इज द मेन कंक्लूजन, सही बात है, जस्टिफाइड है, बट फर्स्ट पॉइंट में हमें प्रॉब्लम है, आई कांट अंडरस्टैंड। होल्ड करते हैं चलो। The first is an assumption that the argument claims is false. My goodness. पहला वाला एक assumption है, आर्ग्यूमेंट के क्लेम ही फॉल्स है। ये तो पूरा अगेंस्ट चला गया। The first represents a position that the argument challenges. Okay, balanced, ठीक है। एक पोजीशन रिप्रेजेंट कर रहा है जिसको एक आर्गुमेंट चैलेंज कर रहा है। ओके, बैलेंस्ड टिल नाउ। द सेकंड इज द मेन कंक्लूजन, ठीक है, ये तो सही बात है, तो होल्ड करते हैं। द फर्स्ट स्टेट्स द मेन कंक्लूजन बकवास। जब सेकंड कंक्लूजन है अपना सही वाला, तो अपन कैसे कर सकते हैं? द फर्स्ट इज अ प्रेडिक्शन दैट द आर्गुमेंट completely rejects. No, how can you be this extreme? Eliminated. So now the battle is between A versus C. Till now I would say Mahesh is in safe zone. बस महेश ही है safe zone. रोहन तुम्हारा क्या था? Sir, B or C. ठीक है, B versus C. रोहन भी सेफ जोन में है, महेश भी सेफ जोन में है। सॉरी मंजू, यू मिस द चांस दिस टाइम। देखते हैं। The first widely held belief that the argument sets out to defend. ठीक है। Widespread adoption of autonomous vehicles is heavily touted by urban planners as a definitive solution to city traffic congestion. I know this is not really a belief, I would say. Nowhere in the argument can you say that this is a belief. What is belief? कि भाई आप कई सालों से उसी चीज को फॉलो करते हुए आ रहे हैं, कई सदियों से वही चीज फॉलो होती आ रही है उनकी। अगर हम इसको बिलीफ डिक्लेयर भी कर देते हैं एक पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए, चलो हम बोल दिए कि हाँ भाई ये बिलीफ सही है, इट इज सेटिंग आउट हिमसेल्फ टू डिफेंड कर रहा है, या फिर उसको क्लियर करने की कोशिश कर रहा है, उसकी पोजीशनिंग बता रहा है, उसके चैलेंजेस बता रहा है। Which is why again A is a blasphemous one and C becomes the correct answer choice. Is this quite clear to you all? हाँ, किसी मैंने जो A को एलिमिनेट किया था वो इस वाइडली पे एलिमिनेट किया था कि वाइडली तो है ही नहीं, अर्बन प्लानर तो मतलब कुछ लोग होंगे। ठीक है, वाइडली कर सकते हो, वो भी गलत नहीं है, एकदम सही है। जो बोल रहे हो वाइडली हेड और अर्बन प्लानर्स कुछ लोग होंगे, सही है, कोई दिक्कत नहीं। एक और इसका पॉइंट ऑफ व्यू ये आ गया। सो यू नो व्हाट हैपेंस इन क्रिटिकल रीजनिंग इज कि भाई आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के ना आई वुड से 10 एक क्वेश्चन सॉल्व करने के आपके 10 डायरेक्शंस होते हैं, and that is what people expect from managers to do. So you are not only solving critical reasoning, you are trying to decide what's going to happen in the upcoming days in any sort of company. That is what you are trying to decide. Is this part clear? And that is why critical reasoning is of foremost important, be it any exam. You won't believe, but आप लोगों को लगता होगा कि कैट और जीमैट ही ऐसे एग्जाम है जहाँ पे आपको क्रिटिकल रीजनिंग चाहिए। ट्रस्ट मी गाइस, बैंक्स के जितने एग्जाम्स होते हैं, क्लर्क्स से लेकर के एसपीओ सीनियर जो प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है, ठीक है, हर जगह क्रिटिकल रीजनिंग का जो वेटेज है वो 60 to 70% रहता है। इवन इन LSAT, law school aptitude test, 65% weightage is of critical reasoning. That is how important critical reasoning is for solving and for qualifying any exam. Even when you are going in the college doing MBA ना, एक सेकंड ऐसे जाए, RBI में तो 100% है, ओके।
Yeah, Chirag, he is the RBI guy, by the way. He is like at 24, 99.9 something percentile with. MBA में आप क्या बोल रहे हैं तुम खुद? MBA, हाँ, when you'll go and take admission in any XYZ college, ठीक है, tier 1 हो, tier 2 हो, tier 3, आपके पहले सेमेस्टर में ना एक सब्जेक्ट होता है CRW, एंड ये CRW का जो वेटेज होता है दैट होल्ड्स 35% वेटेज। क्रिटिकल रीजनिंग आपका MBA में जाने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ने वाली, पता है। इवन आप जब एग्जाम लिखोगे, आपका रिटर्न जब होगा वहां पे, ठीक है, आप अगर डायरेक्टली लिख दिया ना, मान के चलो व्हाट इज मार्केटिंग, क्वेश्चन आया व्हाट इज मार्केटिंग, जस्टिफाई, आप अगर लिख के आगे थ्योरी, उसमें 8 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 0 दे देगा एग्जामिनर। What is marketing? They are not asking you the definition of marketing. What they are trying to do, they are trying to understand what you incorporate or what you have, understood till now from the concept of marketing. Marketing XYZ लोगों के लिए होती है, बट मार्केटिंग का क्रक्स क्या होता है कि आप नीड जो हो सेटिस्फाई नहीं करते। दैट इज नॉट व्हाट मार्केटिंग इज। यू डू नॉट सेटिस्फाई द नीड्स। नीड सेटिस्फाई करना मार्केटिंग का काम है ही नहीं, और मैक्सिमम बच्चे यही लिख के आते हैं पेपर में। मार्केटिंग का जो काम होता है, इट इज नीड को आइडेंटिफाई करना, बट बिफोर दैट द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट, नीड जनरेट करना। ये होती है मार्केटिंग। तो टेक्निकली यहाँ पे भी क्या हुआ, आई यूज्ड क्रिटिकल रीजनिंग, and that is the reason why I focus so much on critical reasoning, because no matter what sort of paper you are giving, in every single paper you'll have to be focused upon critical reasoning। हर जगह आएगा, वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ने वाला। Is this part clear to you all? Yes or no? Fast. Yeah. चलो, मतलब देखो irrelevant चीज तो नहीं पढ़ा रहा है तुम लोग को, ठीक है, so rest assured। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी तो टाइम है अपने पास। एक दिन लेट सो लेना, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होता। ये वाला और कर लेते हैं, ठीक है, तो टारगेट अपना कम से कम कंप्लीट हो जाए आज का। करें? हाँ इसकी स्कोरिंग करेंगे, ठीक है। आई एम गिविंग यू गाइस 3 मिनट्स, रुको टाइमर लगा लेते हैं पहले। तीन मिनट दे रहे हैं, स्विचिंग ऑन द टाइम। 3 मिनट के पहले कोई आंसर नहीं देगा, ठीक है, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। So this question would have a lot of learning for you guys if you are open to do that.
क्वेश्चन क्योंकि काफी अच्छा है। लास्ट 30 सेकेंड्स। पार्थिव देखेंगे ना, क्लास हो जाए फिर करते हैं बात पर, ठीक है। हिमांशु ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यार चिराग बोल नहीं यार, दे आर लर्निंग ब्रो। कम ऑन गाइस, टाइम्स अप। सो सी। स्टेक होल्डर्स मंजू है, यहाँ लिखते हैं। वेट 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 वेट, मजा आएगा। मंजू सिंह सी। महेश आपका क्या कहना है? सी तो मेरा भी आंसर है। ठीक है। रोहन आपका? सी। ठीक है। चिराग आपका? चिराग शर्मा आपका? ठीक है यार, कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो तुम ही बनाए हो, तुमसे क्या ही पूछे। एनीवेज लेट्स सी। भाई मैंने चैट पे लिखा तो है सी। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। A pharmaceutical company recently developed Xylophane, a new drug designed to treat severe chronic migraines. In extensive clinical trials, वो पहले तो देखो Xylophane का जो वो है, ठीक है। Xylophane क्या करता है? ये क्रॉनिक माइग्रेन्स को ठीक करता है, ठीक है, जिनका स्टेज एकदम सीवियर होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। In extensive clinical trials, in extensive clinical trials, Xylophane successfully eliminated migraine symptoms in 85% of patients without causing the debilitating nausea and frequently associated with कुछ कुछ बकवास करती है। अरे यार ये पेट, हाँ ठीक है। इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, ठीक है, बट साइड इफेक्ट्स यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों? बिकॉज इसने क्या किया है, इस माइग्रेन को 85% केसेस में आराम से सही कर दिया है, ठीक है। मतलब 85% केसेस ऐसे रहे हैं जहां पे माइग्रेन के जो इशू थे वो रिजॉल्व हो चुके हैं। नाउ आगे बढ़ते हैं। Based solely on these trial results, the pharmaceutical company confidently projects that Xylophane will capture at least 70% of the prescription medication market within its first year of release. ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन में जो ड्रग दिया जाता है, ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन में कुछ ड्रग वगैरह दिया गया, तो what Xylophane is gonna do, they are gonna capture 70% of this medication market। और उसकी एक डेडलाइन भी दी है ये लोग, विद इन ईयर, 1 साल में कर देंगे, ठीक है। इतना हो गया, इतना पार्ट क्लियर है सबको? या ओके। हाँ, Which of the following is an assumption? What an assumption actually is? assumption सॉल्व करने के 3 रास्ते होते हैं। पहला होता है, या तो आप नेगेशन टेस्ट यूज करो, जो बहुत लोग करते हैं, ठीक है, either use negation test। दूसरा, this is something that I myself developed when I was preparing for CAT, get in the shoes of others। Get in the shoes of others या his mind। तीसरा होता है
सदा सर्वदा प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। ये 3 रास्ते होते हैं, अपन तीनों यहाँ पे करके देखेंगे। सबसे पहला अजम्पशन समझते हैं कि अजम्पशन है क्या। अजम्पशन इज अ ब्रिज, ठीक है। मान के चलिए मुंबई है, ये पुणे है, मुंबई पुणे हाईवे के बीच में एक ब्रिज है। मुंबई अपना हो गया प्रेमाइस, जिस पे आपकी दुनिया स्थापित है। पुणे हो गया आपका कंक्लूजन, जो आपका डेस्टिनेशन है, जहां आपको पहुंचना है। अब इन दोनों के बीच में एक ऐसा ब्रिज होता है जो इनके रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाता है। तो इन दोनों की अपन क्या करेंगे, शादी करा देंगे। और शादी की जो गांठ बांधता है वो होता है अजम्पशन। इट ब्रिजेस द गैप बिटवीन अ प्रेमाइस एंड द कंक्लूजन। दैट इज व्हाट एन अजम्पशन इज। कि भैया प्रेमाइस है, कंक्लूजन है, अब उन दोनों के बीच में एक लाइन खींचनी है आपको कि दोनों कॉमन बन जाएं, दोनों आराम से जस्टिफाई हो जाएं। तो वो चीज करता है ये अजम्पशन। ये पार्ट क्लियर है व्हाट अजम्पशन एक्चुअली इज। हाँ चलो यार, हम देखो बार बार टैब चेंज नहीं कर सकते, तो माइक ऑन करके बोल उसको जो बोलिए, ठीक है। आई कांट डू, टाइम जाता है उसमें। देखते हैं। The manufacturers of Migratrol will not lower its price significantly in response to the market introduction of Xylophone. इससे क्या assumption ब्रिज करना है, गैप ब्रिज करना है अपन को। ऑथर क्या सोच के इस पर्टिकुलर पैसेज को लिख रहा था, क्या ऑथर ने ये सोचा था, क्या ये ऑथर अज्यूम किया था कि भाई देख जो मैन्युफैक्चर है ना माइग्राट्रोल का, ठीक है। पहली चीज तो यार देखो, हमको दिक्कत पता है किस चीज से है। जब हम जाइलोफेन की बात कर रहे हैं, then how the hell are you bringing this migratrol into picture? कैसे ला रहे? ठीक है चलो होल्ड करते हैं, इस चीज को हम जस्टिफाई कर लें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसका जो मैन्युफैक्चरर है, इट विल नॉट लोअर इट्स प्राइस सिग्निफिकेंटली लोअर नहीं करेगा इसका प्राइस in response to the market introduction of Xylophone. Is this an assumption जिसके ऊपर इसका आर्गुमेंट डिपेंड कर रहा है? क्या ऑथर ये सोच रहा था उस टाइम पे कि भाई माइक्रोट्रोल तो अपना वो करेगा नहीं, अपने प्राइसेस को डाउन करेगा नहीं। क्यों डाउन नहीं करेगा? क्योंकि मार्केट में Xylophone नाम का एक ड्रग वापस से आ चुका है। आई डोंट अंडरस्टैंड, मतलब ये इररिलेवेंट नहीं लग रहा, बिकॉज व्हाट आई एम फीलिंग इन दिस इज कि I can't correlate. I'm not able to correlate the premise and conclusion in this. मतलब देखो, why am I not able to do it? पहली चीज क्या थी यार? पहला था माइग्रेन, ठीक है। इसमें तो चलो माइग्रेन नहीं है, माइग्रेन है ही नहीं यहाँ पे। यार अजम्पशन कोई एलियन नहीं होता, पता है। अजम्पशन पार्ट होता है पैसेज का ही। जस्ट द केसेस की आपको आइडेंटिफाई करना रहता है, आपको ढूंढ के निकालना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप कहीं आप एक नई संरचना करोगे और आपका assumption आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा। That is not how assumption works. Assumption has to be related to the passage, but it is hidden. You have to find it out. Which is why again यहाँ पे ना माइग्रेन है, ना प्रॉब्लम्स है, ना उसका प्रॉब्लम फैक्टर जो था, जो नौशिया वाली चीज थी, ना सक्सेस रेट है, कुछ भी तो नहीं है मैंने eliminated. The 15% of clinical trial patients whose migraines were not eliminated by Xylophone did not experience any other adverse side effect. अब अपन क्या करते हैं इसमें, अपन क्या किया, ऑथर के शूज में गए, ठीक है। इसमें क्या करेंगे अपन, नेगेशन करेंगे। The 15% of clinical trials whose migraines were eliminated by Xylophones, they did experience some other adverse side effects. मतलब ये 15% वो लोग हैं, ये 15% वो जनता है जिसके क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुए थे, या फिर जिनके क्लिनिकल ट्रायल्स का जो रिजल्ट था दैट वाज कॉजिंग सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम टू देम, पैसेज के हिसाब से। तो फार्मास्यूटिकल कंपनी का जो प्रोजेक्शन है, डज इट डिपेंड ऑन दिस फैक्टर? बिकॉज
I can't understand what's the factor in this again. ये नेगेटिव में ज़्यादा अच्छे से जाता, मतलब अगर उसका रहता है कि ये क्यों फेल होता तो Prima facie, this is not answering my question stem. I'm not able to understand the factor. Now I'm not able to understand कि भाई projection किस पे dependent है इस चीज का. Again, eliminated. C देखते हैं. The absence of severe nausea is a primary factor. Okay. Influencing migraine patients and their physician's choice of prescription medication. Quite balanced, perfectly balanced. I'm gonna hold it. क्यों hold it? देखो, primary factor nausea, migraine कोर फैक्टर, ठीक है. प्राइमरी फैक्टर मतलब आपका ये हो गया कि भाई आप किस चीज पे फोकस्ड हो, ठीक है, उसके सिम्टम्स क्या है, ठीक है, आपकी कोर प्रॉब्लम क्या है, माइग्रेन के जो पेशेंट्स हैं उनका इलाज करवा, ठीक है. ये सारी चीजें कहाँ से जस्टिफाई है कि भाई जब कोई फिजिशियन प्रिस्क्रिप्शन लिखेगा तो इट इज वेरी मच बैलेंस्ड एंड इट इज kind of, I would say, relating to every single argument that is still now coming to me. Hold on, hold कर लीजिए इसको, ठीक है. Xylofeng is significantly cheaper to research. Cheaper to research कहाँ से बोल दिया यार? Develop and manufacture on a large scale than Microtrol is. Comparison आपने किया भी तो गलत किया. Eliminated. Patients who currently use Microtrol are generally highly dissatisfied with its effectiveness in completely eliminating. Completely eliminate तो कर भी नहीं रहे. अब करेगा भी नहीं. ना ही पैसेज अपन को ऐसा कुछ बता रहा है, ना ही इंडिकेट भी कर रहा है. कंप्लीटली एलिमिनेटिंग का मतलब क्या हुआ? 100% सक्सेस रेट. कहीं पे लिखा है 100% सक्सेस रेट है उसकी? 85% तो हमें पता है, 70% भी पता है. Where the hell is this 100% coming from? Eliminated. Which is why C is the correct answer choice for this particular question. Is this quite clear to you all? सारे क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग, पैसेज की अंडरस्टैंडिंग, क्वेश्चन स्टेम क्या मांग रही है, ऑप्शंस का एलिमिनेशन, ठीक है, ऑप्शन को हमने जस्टिफाई कैसे किया, रिलेट कैसे किया, व्हाट एग्जैक्टली वाज आई फोकस्ड अपॉन, हाउ डिड आई कम टुवर्ड्स द फाइनल आंसर, उसका लॉजिक, उसका प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन, ये सारी अंडरस्टैंडिंग हर एक सिंगल बच्चे को जो यहाँ पे प्रेजेंट है क्लियर है? हाँ या ना, जल्दी बताओ. किसी मैंने जो इस पे थोड़ा सा सोचा था, थोड़ा सा मेरा थॉट अलग था. बताइए. मैंने क्या सोचा कि यहाँ पे मैं एक दो दवा है, क्या दवा का नाम था, जो भी नाम है, एक एक्स से और एक एम से, ठीक है, ठीक है. एम से मैंने जो दवा लिया उसके कारण मुझे एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है, इससे मैं परेशान हो जाता हूँ. ट्रीटमेंट मेरे जो सिम्टम का है वो कर रहा है. जो एक्स वाली दवा है वो मेरा ट्रीटमेंट भी कर रहा है और मेरा प्रॉब्लम भी नहीं हो रहा है, मतलब 85% नहीं हो रहा है. ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो अब वो पूछ रहा है कि किस आर्गुमेंट पे, मतलब किस एजम्पशन पे मैं जाऊं कि मेरा 70% हो जाए, मतलब मार्केट शेयर पकड़ ले. मैंने बोला कि मैं सबसे ज्यादा इरिटेटेड था मैं इस दवा से, क्योंकि ये एम वाली जो दवा है मुझे इरिटेट कर रही थी और वो इरिटेशन नहीं है एक्स वाली दवा में. तो अगर एक्स वाली दवा को इसीलिए मैं प्रेफर करूंगा कि ये इरिटेशन मेरे को नहीं है, रिजल्ट का मुझे मालूम नहीं है. इन्होंने बोला 85% सक्सेस रेट है, ठीक है, तो मैंने इसी के बेसिस पे मतलब सी को चूज किया था. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. प्राइमरी मतलब यू हैव फोकस्ड ऑन प्राइमरी फैक्टर. यहाँ पे इसने क्या किया है ना, देखो क्वेश्चन ने इसको बस टेक्निकल टर्म्स में डाल दिया है और कुछ नहीं. ऑप्शन भी वही चीज बोल रहा है जो आप कह रहे हो, जस्ट इन टेक्निकल टर्म्स, दैट्स इट. ठीक है, ठीक, ओके, चलो.